यस, काफ मसल क्या है? आपके घुटनों के नीचे का जो पैर है उसमें जो पीछे का हिस्सा है पैरों का, दैट इज कॉल्ड एज अ काफ मसल. It is connecting the calf muscle to our heel bone. Pain at the back of the ankle or lower calf may signal a problem with the Achilles tendon. Athletes, जो आपको मालूम है, who participate in track and field may face this Achilles tendon injury. Most tendon injuries occur near joints such as the shoulder, elbow, knee, and the ankle. So we are going to basically learn the types as the tendons and the ligaments. Tendons and ligaments are a type of dense connective tissue. ठीक है. अब dense connective tissue में भी आप देख सकते हो दो टाइप है, dense regular and dense irregular tissue. So again you can write down in your notebook. Heading लिखो dense connective tissue. Write down dense connective tissue, make two parts. At one side write down dense regular tissue and दूसरे side लिखो dense irregular tissue. ओके, रेगुलर टिश्यू के नीचे उसको दो पार्ट में डिवाइड करो. राइट डाउन टेंडॉन्स, लिगामेंट्स. टेंडॉन्स, लिगामेंट्स. एंड इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में लिखो फाउंड इन डर्मीज ऑफ स्किन. डर्मीज मीन्स लेयर, फाउंड इन डर्मीज ऑफ स्किन. ठीक है. So what are basically these tendons? Tendons always connect the skeletal muscle to the bone. Muscles को bone से connect करने वाला होता है tendons. So write down the definition of tendon. Write down the definition of tendon. It connects skeletal muscle to the bones. Connects skeletal muscle to the bones. Next point, have you written this much, beta? Yes. Next point in the tendons itself. Second point likho. Made up of white fiber. Made up of white fiber. Third point, it provides strength to the tissue. Provides strength to the tissue. क्या क्या लिखा बेटा? Anybody please tell me क्या क्या लिखा आपने tendons के लिए? Definition के बाद second point क्या लिखा? Made up of white fibers and it provides strength to the tissue. Example लिखो. Example. You can see the example given over here. Achilles tendon and the hamstring tendon. Achilles tendon and hamstring tendon. I will show there with the pic. Next heading likho ligament. Number 2 write down next heading as ligament. Put a dash and write down they are present at the in between the joint. लिखो ligament में they are present in between the joint या फिर at joints. Second point in ligament, made up of yellow fiber. Third point, provides elasticity, comma, provides elasticity, put a comma, prevents dislocation of bone. मतलब
बोन को जगह से हिलने से बचाता है, prevents dislocation of bone. Okay. Now you can see over here the Achilles tendon. ये जो पीछे का हिस्सा है, all of you can see the PPT. Yes. ये जो Yes. पीछे का हिस्सा है पैरों का, इसे हम काफ कहते हैं, ठीक है। तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से टेंडॉन्स बना होता है, ठीक है। तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू हमें पता है कि इट इज रिच इन कोलेजन फाइबर, और जहां पे भी कोलेजन फाइबर होता है इट इज ऑलवेज प्रोवाइडिंग टफ, ठीक है। टफ होता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और वो इनइलास्टिक होता है, ठीक है। टेंडॉन्स कनेक्ट्स द मसल्स विद द बोन, so they are specialized extension or the prolongation of the muscle. They are formed of bundle of collagen fiber, ठीक है। यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हैं, Achilles tendon and the hamstrings tendon. They are important in important role in various movement. नेक्स्ट ये जो है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लिगामेंट। नाउ आप देख सकते हो ये एक जॉइंट, ये एक हड्डी और ये एक हड्डी है, दो हड्डियों के बीच में क्या होता है, जॉइंट होता है, और जॉइंट में आप देख सकते हो यहाँ पे लिगामेंट प्रेजेंट, यू कैन सी द लिगामेंट प्रेजेंट ओवर हियर आल्सो एंड यू कैन सी द लिगामेंट प्रेजेंट ओवर हियर आल्सो। तो लिगामेंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, दो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होता है वहां पर प्रेजेंट होता है लिगामेंट, and this ligament is made up of yellow fiber and it is providing the elasticity, है ना, और साथ में डिसलोकेशन से भी बचाता है, बोन को हिलने से भी बचाता है। Got it all of you? Yes, ma'am. You can see this is a kneecap. आप 11th स्टैंडर्ड में बोन्स पढ़ोगे तभी आप समझोगे कि अपना जो घुटना होता है, यस, तो वो एक छोटे से बोन से बना है जिसको हम नी कैप बोलते हैं या फिर पटेला बोन बोलते हैं, पटेला बोन, ठीक है। रेटिकुलर टिश्यू यू डोंट हैव टू लर्न, ठीक है। रेटिकुलर टिश्यू ये आपको नहीं है बुक में पढ़ने के लिए। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द नेक्स्ट टाइप, दैट इज द सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग, पुट अ हेडिंग अगेन, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। लिखा, put a first point in that, presence of hard matrix. Okay. Now I will be teaching you first. It is made up of two parts, that is a cartilage and bones, ठीक है। तो पहले हम कार्टिलेज समझते हैं कि क्या है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज आर नथिंग बट द सॉफ्ट बोन. It is endoskeleton in many of the cartilaginous fishes like the shark. We have already learned two types of fishes, bony fishes and the cartilaginous fishes, है ना। तो कुछ फिशेस के अंदर ये एंडोस्केलेटन ही पूरा कार्टिलेज से ही बना होता है, पर अगर हम हमारे बारे में बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसमें बोन्स भी है, 206 बोन भी है और साथ में कार्टिलेज भी है। जैसे कि हमारा कान, अपना जो ईयर है, ईयर इज फ्लेक्सिबल, मूव करता है ना, तो इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। हमारा नोज फ्लेक्सिबल है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इज इट वेरी क्लियर? तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग वी आर हैविंग बोन्स आल्सो एंड वी आर हैविंग कार्टिलेज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब जो स्केलेटन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ
When we talk about the matrix is hard in case of both cartilage and the bones. Let me make you understand the structure of cartilage. तो उसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल, ये डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि कोई भी कार्टिलेज कैसा दिखता है. डोंट सी द हाइलिन कार्टिलेज, डोंट इमेजिन दिस एज अ हाइलिन कार्टिलेज. जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कार्टिलेज. तो कोई भी कार्टिलेज जो होता है, अगर हमने उसको कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो जो उसका आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज द पेरिकॉन्ड्रियम. प्लीज नोट डाउन, कार्टिलेज को ही हम कॉन्ड्रिन बोलते हैं, कॉन्ड्रिन. इसलिए आपने बोन कार्टिलेजिनियस फिशेस को कॉन्ड्रियोकाइटिस पढ़ा था वर्ड. किंगडम एनिमेलिया में आपने कार्टिलेजिनियस फिशेस को कॉन्ड्रियोकाइटिस के हेडिंग में पढ़ा था. तो कॉन्ड्रिन का बेसिकली मतलब होता है कार्टिलेज. ठीक है. सो कार्टिलेज का जब हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो व्हाट वी कैन सी, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ कार्टिलेज इज कॉल्ड एज अ पेरिकॉन्ड्रियम. क्या बोलते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम. अंदर इसके जो मैट्रिक्स है, यस, ये मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिन. CHONDRIN, कॉन्ड्रिन. मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द कॉन्ड्रिन. आपको चाहिए तो आप डायग्राम में लिख भी सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. क्या क्या बताया मैंने? द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम. पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर जो मैट्रिक्स है उसे हम बोलते हैं कॉन्ड्रिन. इतना क्लियर? नेक्स्ट, अभी और क्या है? अगर आप कॉन्ड्रिन के नीचे देखोगे तो हमें छोटे छोटे सेल्स नजर आ रहे हैं. कॉन्ड्रिन के नीचे हमें स्मॉल कार्टिलेज के सेल नजर आ रहे हैं. कैसे नजर आ रहे हैं? स्मॉल सेल्स. और क्योंकि ये स्मॉल सेल्स है, दे आर इमेच्योर सेल्स, इमेच्योर कार्टिलेज सेल. मैं वापस रिपीट कर रही हूं. बिलो द पेरिकॉन्ड्रियम वी कैन सी immature cartilage cell, immature cartilage cell, and these immature cartilage cells are called as chondroblast. blast आएगा मतलब कि immature है. chondroblast, immature cartilage cell. फिर अगर आप अंदर और जाओगे तो आप देख सकते हो कि पेरिकॉन्ड्रियम से थोड़ा दूर की तरफ, अंदर की तरफ अगर हम आएंगे तो वी कैन सी अ मैच्योर कार्टिलेज सेल. These mature cartilage cells are called as chondrocyte. साइट का मतलब बायो में होता है सेल. तो कार्टिलेज के सेल है, इसके लिए हम इसका नाम क्या बोल रहे हैं? कॉन्ड्रोसाइट. ठीक है. तो मैंने आपको दो टर्म इंट्रोड्यूस किया, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट. कॉन्ड्रोब्लास्ट इमेच्योर सेल्स है और कॉन्ड्रोब्लास्ट मैच्योर सेल्स है. ओके. अगर आप मैच्योर सेल्स को ध्यान से देखोगे, मतलब कि अगर आप कॉन्ड्रोसाइट्स को ध्यान से देखोगे, तो आप देखोगे कि जो भी सेल्स है उसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट है. जैसे भी ये एक सेल है, दो सेल है, उसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट है. तो ये जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं लैक्यूने. यस. इसका मतलब हाउ आई कैन से, chondrocytes are enclosed inside lacunae. ठीक है. chondrocytes किसके अंदर enclosed है? They are enclosed inside the lacunae. फिर क्वेश्चन आता है कि आप कहीं कहीं देख सकते हो कि 2 है, फिर कहीं कहीं आप 4 भी देख पा रहे हो. तो इसका मतलब क्या है कि कितने, एक लैक्यूने में कितने कॉन्ड्रोसाइट्स रह सकते हैं? तो एक लैक्यूने के अंदर 2 से लेकर 8, 2 to 8 chondrocytes can be there in each lacuna. lacuna मतलब एक, lacune मतलब बहुत सारे. ठीक है. So each lacuna के अंदर there can be 2 to 8 chondrocytes. Is that very clear to all of you? तो ये क्या है? This I have explained you the basic structure of a cartilage. कि कोई भी कार्टिलेज, अभी हम टाइप्स ऑफ कार्टिलेज आगे पढ़ेंगे.
तो आपको ये सारे टर्म्स पता होना चाहिए कि पेरिकॉन्ड्रियम क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या है, कॉन्ड्रिन क्या है, लैक्यूने क्या है और कॉन्ड्रोसाइट क्या है. यस, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ बेटा, प्लीज सी टू इट वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट. आई एम रिपीटिंग द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्टिलेज. कैसा दिखता है कोई भी कार्टिलेज. So cartilage is covered by the outermost layer of cartilage is called as the perichondrium. Matrix of cartilage is called as chondrin. Matrix of cartilage is called as chondrin. Below perichondrium, there are immature cartilage cell called as chondroblast. क्या बताया मैंने? बिलो पेरिकॉन्ड्रियम there is immature cartilage cell called as chondroblast. When this chondroblast will mature, they will come down and now they will be called as chondrocytes. Very good. These chondrocytes are enclosed inside the lacunae. Each lacunae may contain either 2 to 8, मतलब उसका कैपेसिटी कितना है? 8 कॉन्ड्रोसाइट एक लैक्यूने में रह सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कार्टिलेज. नाउ सी, मैं वापस बोल रही हूँ, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स. ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स मतलब कार्टिलेज का मैट्रिक्स कौन से टाइप का है, उसके अनुसार there are 4 types of cartilage. What we have said, depending upon the type of cartilage, मतलब मैट्रिक्स कैसा है. कभी कभी जेल के जैसा भी हो सकता है मैट्रिक्स, कभी कभी फाइबर से भी बना हुआ सकता है मैट्रिक्स, कभी कभी उसमें सॉल्ट भी हो सकता है मैट्रिक्स में. तो मैट्रिक्स किस चीज से बना है उसके अनुसार देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. ठीक है. So the very first cartilage which you have to learn is called as a hyaline cartilage. Again, this is the favorite question in almost all of the colleges. Hyaline cartilage. हाइलिन का मतलब ही होता है ग्लास के जैसा. ठीक है. क्यों इसको बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है, इसका मेन पॉइंट क्या है बेटा, हम इसको कौन से बेसिस पे अलग अलग कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स. तो हाइलिन कार्टिलेज का प्लीज अंडरलाइन इन योर टेक्स्ट बुक, पुट द थिंग इन द बॉक्स और पुट अ हाइलाइटर ऑन दैट. हाइलिन कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है और जेल के जैसा होता है. ब्लूइश व्हाइट कलर का मैट्रिक्स है और जेल के जैसा है. हमने पहले ही पढ़ा है कि मैट्रिक्स किस चीज से बना होता है, वो पॉलीसेकेराइड से बना होता है. ठीक है. अच्छा, अब सबके अंदर कुछ ना कुछ फर्क होगा. कॉन्ड्रोसाइट्स कैसा है, कॉन्ड्रोब्लास्ट कैसा है, पेरिकॉन्ड्रियम कैसा है, ये तीनों चीजें पे आपको एम्फसाइज करना है अभी. अब इन केस ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, वेरी फाइन कोलेजन फाइबर एंड कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट. यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स कैसे होते हैं? बहुत कम होते हैं, वेरी फाइन होते हैं, एकदम पतले पतले होते हैं और कोलेजन फाइबर्स भी बहुत थोड़े होते हैं. ठीक है. हाइलिन कार्टिलेज का कैसा नेचर होता है? इलास्टिक नेचर होता है और कंप्रेसिबल होता है, मतलब दब सकता है. कंप्रेसिबल मींस दब सकता है. इसका मेन काम क्या है? शॉक एब्जॉर्बर का काम है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. ये कहां पर प्रेजेंट है हमारे बॉडी में? हाइलिन कार्टिलेज हमारे लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट है. लॉन्ग बोन्स कौन से होते हैं? अपने हाथ और पैर के बोन्स आर द लॉन्ग बोन्स. हमारे एपिग्लॉटिस में है. डू यू रिमेम्बर एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस कहाँ होता है बेटा? फेरिंग्स में होता है. फेरिंग्स के अंदर एपिग्लॉटिस जो है वो खाना को विंड पाइप में जाने से प्रिवेंट करता है. तो एपिग्लॉटिस आपने पढ़ा है ना, इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज डूइंग अप एंड डाउन. तो ये अप एंड डाउन कर सकता है, मतलब फ्लेक्सिबल है. तो फ्लेक्सिबल है मतलब किस चीज से बना है? हाइलिन कार्टिलेज से बना है. इवन अवर ट्रेकिया ऑल्सो, हमारा रिब्स भी अप एंड डाउन मूव करता है.
जब हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, इवन अवर लैरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है, हाइयोइड जो टंग के पास अपना बोन होता है, टंग बोन भी बोलते हैं हाइयोइड को. So all these are very flexible and therefore here hyaline cartilage has been provided. Again exam point of view आप दो कोई तो भी location याद कर सकते हो, either long bone or epiglottis, whatever you feel as better. Diagram is very very important. Is that very clear all of you about the hyaline cartilage? सबको समझ गया hyaline cartilage? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. हाइलिन कार्टिलेज, उसका मैट्रिक्स कैसा होता है बेटा? इट इज ब्लूइश व्हाइट इन कलर और जेल के जैसा होता है. इसके अंदर हमें कॉन्ड्रोसाइट्स देखने को मिलते हैं, पर बहुत फ्यू वेरी फाइन कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं और कोलेजन फाइबर्स भी देखने को मिलता है. ये कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट है, फिर वैसा उसका काम भी होगा. कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे लॉन्ग बोन में, हमारे एपिग्लॉटिस में, हमारे ट्रेकिया में, हमारे रिब्स में, लैरिंग्स में, हाइयोइड में. मतलब ऐसे जगह पे प्रेजेंट है जहाँ पे हमेशा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, जहाँ पे हमेशा कंप्रेशन हो रहा है. यस, तो इसका काम क्या है? इट इज अ वेरी गुड शॉक एब्जॉर्बर, फ्रिक्शन से बच जाता है और इसके अंदर बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है. गॉट इट ऑल ऑफ यू? एक बार ये रीड कर लो. एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट, यू कैन आस्क मी दिस पैराग्राफ. ये पूरा पैराग्राफ रीड करो बेटा फास्ट. हाँ बेटा बोलो. हाइयोइड क्या है? हाइयोइड बोन इज अ टंग बोन. आप जब बोन्स पढ़ोगे ना, तभी आपको ये सब बोन्स पढ़ना है अभी ह्यूमन स्केलेटन में. ये सारे बोन्स अभी आप पढ़ने वाले हो ह्यूमन स्केलेटन में. ये ऐसा बोन है जो हमारे टंग के यहाँ पर प्रेजेंट होता है, टंग के लास्ट में, एंड में. थैंक यू मैम. हाँ, हुआ बेटा सबका रीड करके? Yes, ma'am. Shall I move forward? Yes. Just a second, I will go back to the slide. Okay. So देखो, ये स्लाइड में भी वापस आप यही सारी चीजें देख सकते हो. आप पेरिकॉन्ड्रियम देख सकते हो, आप कॉन्ड्रोसाइट्स देख सकते हो. यू कैन सी द लैक्यूना. हाँ, यू कैन सी द इलास्टिक फाइबर्स इन बिटवीन. ठीक है. So depending upon the nature of matrix, see the cursor, depending upon the nature of matrix, the cartilage are divided into 4 types: hyaline cartilage, fibrous cartilage, elastic cartilage, and calcified cartilage. We have learned the first one, that is a hyaline cartilage. We have already learned. So see the position. This is the long bone. फीमर बोन अपना थाई बोन होता है. थाई बोन को फीमर बोन बोलते हैं. फीमर बोन बोलते हैं सॉरी. सो ये यस, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द वीकेस्ट ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. प्लीज नोट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक. इट इज बिन नॉट बिन गिवन. इट इज द वीकेस्ट. ये चारों टाइप में से हाइलिन ही सबसे वीकेस्ट होता है. हाइलिन और भी बहुत सारी जगह प्रेजेंट है. यू कैन सी मेनी मोर रीजन्स प्रेजेंट ओवर हियर इन द पीपीटी. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द टिप ऑफ योर नोज. फीटल एंड एम्ब्रियोनिक स्केलेटन भी हाइलिन कार्टिलेज से ही बना हुआ होता है. ठीक है. इसका मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया. वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉन्ड्रोसाइट्स. वी हैव डिस्कस अबाउट द फंक्शंस आल्सो. So I always request all of you to write down the things in this particular manner, then only you will get full marks. ऐसे ही लिखो. origin लिखो या location लिखो, structure, function, and then the diagram. Not this diagram, the diagram which has been given in your textbook.
Next, we are going to learn about the cartilage, that is a fibrous cartilage. Fibrous cartilage, जिसको हम फाइब्रो कार्टिलेज भी बोल सकते हैं. अब ये कौन सा है? इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज. सो प्लीज नोट डाउन in your textbook or in your notebook, fibrocartilage is the strongest cartilage. ठीक है? And most rigid also. कहां पर प्रेजेंट है? हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस में और हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में. इसका मतलब क्या है? तो प्यूबिक सिम्फाइसिस का फोटो आप यहाँ देख सकते हो, जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है. पेल्विक गर्डल मतलब हिप बोन्स. जो हमारा हिप बोन है उसे हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं. तो अपना जो पेल्विक गर्डल है, दिस इज द फ्रंट साइड. आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन से लेबलिंग किया है, ग्रीन पार्ट. दिस ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड एज अ प्यूबिक सिम्फाइसिस. Pubic symphysis. This green part is called as a pubic symphysis, which is present at the center of our body. ठीक है? And ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, this is a diagram of intervertebral disc. ये एक वर्टिब्रे है, ये दूसरा वर्टिब्रे. वर्टिब्रे मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी. उन दोनों के बीच में आप देख सकते हो ये पर्पलिश कलर का डिस्क इज कॉल्ड एज अ इंटरवर्टिब्रल डिस्क. मतलब ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, ये जो फाइब्रो कार्टिलेज है, वो हमारे पेल्विक गर्डल के प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट है और हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बीच बीच में प्रेजेंट है. इसलिए हम बोल रहे हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट है. अगर आप इस कार्टिलेज को देखोगे तो इसमें पेरिकॉन्ड्रियम होता ही नहीं है. तो इट इज नॉट सराउंडेड बाय पेरिकॉन्ड्रियम. और मैट्रिक्स बहुत ही थोड़ा सा होता है. और क्या होता है? मैट्रिक्स बहुत थोड़ा होता है, पर पूरा भर भर के व्हाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं इसमें. एज वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, जहां पे भी व्हाइट कोलेजन फाइबर होगा, इट विल ऑलवेज प्रोवाइड स्ट्रेंथ, है ना. इसके कारण, क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक्स कम है और पूरे जगह में सिर्फ ये कोलेजन फाइबर भरा हुआ है, इसके वजह से ये काफी स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज हो गया है. ठीक है? फंक्शन इज गिविंग कुशन इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क. जब हम झुक रहे हैं, जब हम जंपिंग कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, उस वक्त ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक दूसरे से घिसना नहीं चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. इसके लिए वो कुशन का काम कर रहा है. हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट है. ठीक है? इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो सपोर्टिंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी. डन ऑल ऑफ यू? समझा? एक बार ये पूरा रीड करो, देन आई विल गिव यू द टेक्स्ट बुक टू रीड. एक बार पढ़ो. किसी को नहीं कुछ समझा तो प्लीज आस्क मी. किया रीड बेटा? Yes, all of you. Have you read this much part? Yes. Now you can just see with the textbook part also. So just a paragraph has been given in your textbook. Just have a look and you can see the diagram with lot of white fibers. No perichondrium. Perichondrium है ही नहीं यहाँ पे डायग्राम में. तो जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये सब छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान देना है. यस, बहुत सारे व्हाइट फाइबर्स ड्रॉ करने हैं और पेरिकॉन्ड्रियम नहीं बनाना है. सो MCQ के फॉर्म में इट कैन बी आस्क्ड व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज और व्हिच इज द वीकेस्ट कार्टिलेज.
Just go through this particular paragraph, fibrocartilage ka in your textbook. Okay. The next type is the elastic cartilage. अभी देखो फाइब्रो कार्टिलेज था, उसमें व्हाइट फाइबर था. अब अगर हम इलास्टिक कार्टिलेज बोलेंगे तो उसमें कौन सा कार्टिलेज होगा? सॉरी, इलास्टिक कार्टिलेज बोलेंगे तो उसमें कौन सा फाइबर होगा? उसमें Yellow fiber. इलास्टिक, यस वेरी गुड, येलो फाइबर्स होगा या फिर इलास्टिक फाइबर्स होगा. वेरी गुड. इसका मतलब ऐसा वाला जहां पे भी कार्टिलेज होगा उसका काम क्या होगा? अगेन गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी. तो ऐसा वाला जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो हमारे ईयर लोब में, अगेन टिप ऑफ द नोज में भी प्रेजेंट है. यहाँ पे भी कॉन्ड्रोसाइट्स बहुत ही कम होते हैं, पर पेरिकॉन्ड्रियम होता है. पेरिकॉन्ड्रियम है, कॉन्ड्रोसाइट्स बहुत ही कम है, और पूरा जगह इज ऑक्युपाइड बाय दिस इलास्टिक फाइबर्स. आप देख सकते हो बहुत सारा इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है. डायग्राम इज इंपॉर्टेंट. So I will show you with this part. Elastic cartilage you can see in the ear lobes. Again it is present in our epiglottis also, and the external ear जिसको हम auricle भी बोलते हैं. External ear को auricle भी बोला जाता है. So इसमें पेरिकॉन्ड्रियम होता है और मैट्रिक्स में बहुत सारा येलो फाइबर है. इसके वजह से इलास्टिसिटी होता है. It is giving a shape. It readily recovers its shape after distortion. मतलब आपके कान को कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करो तो टेढ़ा मेढ़ा ही रहता है क्या? वो वापस अपने जगह पे आ जाता है वैसा. तो that is all called as a distortion. So it is maintaining the shape of the body. Next is the calcified cartilage. Calcified cartilage old age में देखने के लिए मिलता है. कभी देखने के लिए मिलता है? It is seen in old age. ये क्या है? कौन सा कार्टिलेज है? ऐसा कार्टिलेज जो सॉल्ट के डिपोजिशन से बना है, मतलब जिसके मैट्रिक्स में सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट है. ड्यू टू दिस डिपोजिशन द कार्टिलेज विल बिकम वेरी हार्ड एंड इलास्टिक, एंड उसका पूरा फ्लेक्सिबिलिटी चला जाएगा. ये कंडीशन कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? ओल्ड एज में, वेयर द जॉइंट लूज देयर मोबिलिटी. मोबिलिटी मतलब चलने का शक्ति. It is found in the suprascapula of the frog and the vertebrae of shark. Shark के vertebrae में बहुत सारा ये होता है, और frog का जो suprascapular region है, ऊपर का region, वहां पे भी हमें calcified cartilage देखने के लिए मिलता है. So again we will go back to the textbook and you can see about this calcified cartilage. Only 3-4 lines has been given. Underline, it is formed due to the deposition of salt. पढ़ा बेटा? एक बार go through करो. Any doubt you can ask me about the cartilage. So we have completed the cartilage part 2. पूरा cartilage पढ़ के हो गया हमारा. Any doubt till now? Yes or no? We have learned tendons, we have learned ligaments, we have learned cartilage, and then we have learned the types of cartilage. इतना तक किसी को कुछ डाउट है? डाउट है तो पूछो, अदरवाइज we will move on with the bones. Anyone doubt? किसी को कुछ डाउट?
Yes or no? No, ma'am. No doubt. So shall we move on with the bone part? Yes. Yes. Okay. So you can take a screenshot of this particular page. Take a screenshot of this particular page. Now we are going to learn about the bones now. So bone is the hardest tissue in our body. Bone is making the true skeleton of our body. It shows the presence of hard, solid, calcified matrix, which is called as ओसीन. हाँ, हमने कार्टिलेज के मैट्रिक्स को क्या बोला था? कॉन्ड्रिन बोला था. बोन के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ओसीन बोलते हैं. बोन के मैट्रिक्स को हम ओसीन बोलते हैं. ये जो हार्डनेस है, जो हम बोल रहे हैं कि वो हार्ड है, सॉलिड है, कैल्सिफाइड है, वो क्यों है? It is because of the deposition of organic mineral salt called as the hydroxyapatite. The formula has also been given. So please note down. Bone has a very hard matrix called as oosin. Oosin is made up of mineral salt, and the name of the mineral salt is hydroxyapatite. ठीक है? चलो अभी मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, मेरे को उसका कोई तो भी आंसर जिसको आता है यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी. मैंने आपको कार्टिलेज का क्या बताया था? आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते थे? पेरिकॉन्ड्रियम. पेरिकॉन्ड्रिया. पेरिकॉन्ड्रियम. तो अब बोन का हम क्या बोलेंगे? पेरिओस्टियम. क्या बोलेंगे बेटा? बोन्स का जो आउटर मोस्ट, पेरिओसिनम. पेरिओस्टियम. ऑस्टियम. ठीक है. कार्टिलेज के मैट्रिक्स को हमने नाम दिया था कॉन्ड्रिन. बोन के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? ओसीन. ओसिन. कार्टिलेज के अंदर जो इमेच्योर सेल्स थे उसको क्या नाम दिया था हमने? कॉन्ड्रोब्लास्ट. कॉन्ड्रोब्लास्ट. तो यहाँ पे क्या नाम देंगे? ऑस्टियोब्लास्ट. क्या नाम देंगे? ऑस्टियोब्लास्ट. ओके. जो मैच्योर सेल्स थे कार्टिलेज में उसको क्या नाम? कॉन्ड्रोसाइट्स. में क्या नाम होंगे? ऑस्टियोसाइट्स. वेरी गुड. शाबाश, सबको आने लगा है. वेरी गुड. तो बस हो गया. थोड़ा बहुत और बोन्स में नाम है और बाकी का सब आपको तो आता ही है, अभी अब सबने बताया मुझे. ठीक है. तो देखो, लेट अस मूव ऑन विद स्टेप वाइज. So bone is enclosed with a thin layer of white fibrous connective tissue which is called as a periosteum. जैसे पेरिकॉन्ड्रियम था वैसा आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम. पेरिओस्टियम से बोन के अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाई जाता है. पेरिओस्टियम के नीचे भी एक लेयर होता है. इन केस ऑफ बोन पेरिओस्टियम के नीचे भी एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम. इज दैट वेरी क्लियर? तो बोन के अंदर सबसे बाहर का लेयर पेरिओस्टियम और पेरिओस्टियम के नीचे है एंडोस्टियम. डन. नेक्स्ट, बोन का जो मैट्रिक्स होता है, क्योंकि ये हार्ड है, तो हार्ड अगर कोई चीज होगा तो उसको एक शेप होगा. तो वैसे ही क्योंकि ये बोन का मैट्रिक्स हार्ड है तो इसका शेप कैसा है? यू कैन सी इन द डायग्राम, इट इज अरेंज इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ऐसा गोल 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 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको. तो जो बोन का मैट्रिक्स है ना, इट इज अरेंज इन अ पर्टिकुलर पैटर्न. इसका एक पैटर्न है. वो पैटर्न क्या है? ये सर्कुलर अरेंजमेंट, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल अरेंजमेंट. तो जो अरेंजमेंट है of the matrix in this concentric circle form उसको हम बोलते हैं lamellae. क्या बोलते हैं? lamellae. तो क्या है lamellae? The matrix is arranged in concentric circle
कॉल्ड एज लैमेले। इतना क्लियर हुआ सबको? फिर से हम जाते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग को पेरियोस्टियम बोलेंगे, उसके नीचे है एंडोस्टियम। फिर हमने मैट्रिक्स के बारे में बताया कि मैट्रिक्स जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज्ड है और वो अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लैमेले। डन। अब लैमेले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लैमेले के अंदर हमें बोन्स के सेल नजर आएंगे, है ना? तो लैमेले कंटेन्स large number of living cells called as a osteoblast and osteocytes which are filled with the fluid called as a lacuna. अब देखो यहाँ पे क्या फर्क है बेटा, हमने कार्टिलेज में लैक्यूने किसको बोला था? जिसके अंदर हमारा कॉन्ड्रोसाइट्स था, पर बोन के अंदर लैक्यूना एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। अगेन आप डायग्राम में देख सकते हो आसानी से बेटा, ये एक ऑस्टियोसाइट है, ये मैट्रिक्स है, और ये जो आपको नजर आ रहा है बाजू में फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड एज अ लैक्यूना। तो देखो अभी आपने फिर नया वर्ड पढ़ा। फिर हम शुरू से चलते हैं, पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम, लैमेले, लैमेले के अंदर बोन के सेल, दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट। अब ये ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट जो है, दे आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, पानी से भरा हुआ कैविटी में प्रेजेंट है, और ये पानी से भरा हुआ कैविटी को हम क्या बोलते हैं? लैक्यूना बोलते हैं। ठीक है। अब ऑस्टियोब्लास्ट की अगर हम बात करेंगे तो दे आर एक्टिव बोन सेल्स, जबकि ऑस्टियोसाइट्स जो है मैच्योर होने के बाद वो इनएक्टिव बोन सेल हो जाता है। उल्टा है, उल्टा है विथ रेस्पेक्ट टू द कार्टिलेज। कार्टिलेज में हमने ब्लास्ट को इमेच्योर बोला था और साइट को मैच्योर बोला था। बोन में ब्लास्ट को हम एक्टिव बोन सेल बोल रहे हैं क्योंकि वो नए सेल्स है ना, और जबकि साइट जो है वो मैच्योर होने के बाद क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। इतना क्लियर सबको? ऑल ऑफ यू हैव क्लियर विद दिस मच? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? अब आपको एक दो और टर्म्स पढ़ने हैं। अब ये जो लैक्यूना है, अगेन आप देख सकते हो ये लैक्यूना है। लैक्यूना में से आप देख सकते हो फाइन फाइन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन बाहर आ रहा है, ऐसे बाहर बाहर आ रहा है ना, ये ब्लू ब्लू कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो ब्लू ब्लू कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, दे आर कॉल्ड एज द कैनालिक्यूलाई which is passing through this lamella. ठीक है, यस, कैनालिक्यूलाई। डन। वापस एक बार हम देखते हैं सबको याद हुआ है कि नहीं सारे टर्म्स। बोन का आउटर मोस्ट कवरिंग है पेरियोस्टियम, जहां से ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई होता है ब्लड बोन को। पेरियोस्टियम के नीचे आता है एंडोस्टियम। एंडोस्टियम के अंदर जो बोन का मैट्रिक्स है, जिसको हम ओसीन बोलते हैं, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज्ड है, जिसको हम बोलते हैं लैमेले। लैमेले के अंदर हमें बोन्स के सेल नजर आते हैं। कौन से दो बोन के सेल्स हैं? ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो एक्टिव सेल्स है और ऑस्टियोसाइट्स जो है वो इनएक्टिव सेल्स हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि ये जो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स है वो एक कैविटी में, फ्लूइड फिल्ड कैविटी में प्रेजेंट है, जिसको हम लैक्यूना बोलते हैं। और ये लैक्यूना में से फाइन फाइन एक्सटेंशन बाहर आ रहा है, जिसको हम कैनालिक्यूलाइज बोलते हैं। अब ये जो पूरा अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा है विथ ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, कैनालिक्यूलाई, लैक्यूना, लैमेले, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट को हम बोलते हैं हेवर्सियन सिस्टम। पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं हेवर्सियन सिस्टम। और ये पूरा, ये जो स्क्वायर आपको बॉक्स नजर आ रहा है, दिस इज फुल हेवर्सियन सिस्टम, जिसके अंदर ये सारे चीजें प्रेजेंट हैं। और हेवर्सियन सिस्टम के बीच में जो बीच का जो जगह होता है उसको हम बोलते हैं हेवर्सियन कैनाल। ठीक है।
हेवर्सियन सिस्टम एंड हेवर्सियन कैनाल। अब ये हेवर्सियन सिस्टम का क्या स्पेशलिटी है? This particular system is present only and only in the mammal's bone. मतलब अगर आप रेप्टाइल का बोन अगर आपको मिल गया, कभी फिश का बोन मिल गया, तो फिश के बोन में ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल का अरेंजमेंट नहीं होता है, उसमें हेवर्सियन सिस्टम नहीं होता है। ये जो पैटर्न है अरेंजमेंट ऑफ बोन सेल्स का ऐसा गोल गोल फॉर्म में, दिस इज एक्सक्लूसिवली सीन इन द मैमेलियन बोन। Got it all of you? Yes. So you can see over here, ये पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे ये पूरा बोन है, बोन को हमने कट किया, हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखो अब गोल 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 नजर आ रहा है आपको। और ये एक पूरा जो है, दिस इज द हेवर्सियन सिस्टम विद द हेवर्सियन कैनाल एट द सेंटर। So the structural unit of bone is the Heversian system or the ostein. Structural unit of bone is the Heversian system. Heversian system can also be called as a osteon. Osteon. ठीक है, मैं एक बार ये सब दिखा दे रही हूँ बेटा, अगर आपको ये नहीं समझेगा तो मैं वापस रिपीट कर दूंगी, नो डाउट। ठीक है, the presence of Heversian system is the characteristics of a mammalian bone. हेवर्सियन सिस्टम में जो बीच में कैनाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हेवर्सियन कैनाल। उसमें से भी क्या पास होता है? ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फ, नर्व सब पास होता है। ठीक है, और ऑस्टियोसाइट्स ये सब कैसे अरेंज्ड है? गोल गोल के फॉर्म में, इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज्ड है। दो हेवर्सियन सिस्टम, देखो अभी ये पूरा एक हेवर्सियन सिस्टम है और ये एक हेवर्सियन सिस्टम है, तो दो हेवर्सियन सिस्टम आर बीन कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड बाय वोल्कमैन्स कैनाल। यू कैन सी द वोल्कमैन्स कैनाल का लेबलिंग डाउन। तो दो हेवर्सियन सिस्टम के बीच में होता है वोल्कमैन्स कैनाल का कनेक्शन। यस, तो अभी ये इसके पहले वाला पीपीटी आप पढ़ लो और फिर ये वाला पीपीटी पढ़ो, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ये पढ़ के हुआ बेटा सबका? Wait, ma'am. सी द नेक्स्ट पीपीटी, ये वाला भी पढ़ के लो। यू कैन टेक आइदर टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो, नो प्रॉब्लम। हो जाएगा रीड करके, तो वन ऑफ यू कैन से मी कि डन करके। यस बेटा, have you all read? Yes. 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 Any Yes. doubt? Yes, anybody is having any doubt?